So some more questions about tongues. तो कुछ और प्रश्न अन्य भाषा के बारे में आए हैं. Somebody asked me, like we said, we are not using our mind. तो हम लोगों ने कहा कि हम अपना मन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. But if, like Holy Spirit speaks to me in my mind, लेकिन अगर पवित्र आत्मा मेरे मन में बात करेगा, is that right or wrong? तो क्या यह सही है या गलत है? So I said, yeah, Holy Spirit can be speaking to us in our mind. तो हमने कहा कि हाँ, पवित्र आत्मा हमसे मन में बात कर सकते हैं. But Holy Spirit is also speaking by the Spirit. तो पवित्र आत्मा भी क्या करता है, वो आत्मा से बात करता है. Both can happen. दोनों हो सकते हैं. So we must allow it to happen. तो हमको अनुमति देना है कि दोनों चीजें हों. And what was the other question? दूसरा प्रश्न था कि अगर हम मन में हाँ. प्रार्थना करते हैं, बिना बोले मन में प्रार्थना करते हैं, तो क्या वह परमेश्वर या शैतान सुनता है? मन में. हाँ. So we say that God is omniscient or all knowing. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सब कुछ जानने वाला है. So if I am praying something in my mind, अगर हम मन में कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, God will know. तो परमेश्वर जानते हैं. You know, God searches our hearts. He knows our minds. परमेश्वर हमारे हृदय को ढूंढता है, हमारे मनों को जानता है. Can Satan know? क्या शैतान जान सकते हैं? Satan is a created being. तो शैतान एक बनाया हुआ प्राणी है. He is limited. उसमें सीमाएं हैं. So you see, if you know Satan is here, he can't be there also because he is created. शैतान ना वो बनाया हुआ है सृष्टि, वो यहाँ पे है तो उसी समय वो वहां नहीं हो सकता. Because he is not God. क्यों? वो परमेश्वर नहीं है. Okay, so basically he is limited. तो मूल रूप से वह एक सीमा में बंधित है. And his understanding is limited. उसका जो समझ है वो भी सीमित है. So what I am thinking inside myself, जो अगर अंदर में अपने सामने सोच रहा हूँ, Satan cannot know. शैतान नहीं जान सकता. He can't know. वो नहीं जान सकता. Right? Okay. ठीक है. और कोई प्रश्न? Yes, sister. जी. माइक है क्या? माइक दे दीजिए उनको प्लीज. Ma'am, Jesus could understand what the Pharisees were thinking in their mind. So it was through the Holy Spirit. Yeah. So the same Holy Spirit we are also having. So why don't we understand what somebody else is murmuring about us? See, if the Holy Spirit reveals to us, we can know. अगर पवित्र आत्मा हमको बताते हैं तो हम जान सकते हैं. But otherwise we can't know, no? Yeah, हम नहीं but जान God, Jesus was 100% God, 100% man. So he could understand. No, but he was 100% man. So he could understand now what the Pharisees they were thinking in their minds, or his disciples were thinking in their mind without their speaking. Correct. No, but sister, we are saying Jesus was 100% man. देखिए बहन, हम ये कह रहे हैं कि यीशु 100% मनुष्य थे. And when he limited himself as a man, he could not know actually. तो जब उसने अपने आप को एक मनुष्य के दशा में सीमित कर दिया तो वो नहीं जान पाता था. But by the Holy Spirit he could know. लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से वो जान सकता था. What is it? It is word of wisdom. तो ये क्या है? एक बुद्धि का वचन है. Or you can, word of wisdom, no brother, or word of knowledge. ज्ञान का वर्ड वचन. So he is operating in that gift. तो वह उस वरदान में होकर काम कर रहा है. And that's why as a man he could know what they are thinking. तो इसीलिए एक मनुष्य के रूप में वो जान सकता था कि वो क्या सोच रहे हैं. Same thing applies to us. तो वही समान चीजें हमें भी लागू होती है. We are human beings. हम लोग मानव हैं. But if the gifts of the Holy Spirit are operating, we can also know. लेकिन अगर पवित्र आत्मा के वरदान अगर काम कर रहे हैं तो हम भी जान लेते हैं. But क्या otherwise we can't know. नहीं तो हम लोग नहीं जान पाते. Okay, I'm happy that there are. Okay, one more question. एक और प्रश्न. आप माइक में बात कीजिए. मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान सच में होता है या वो हमारी कल्पना में सिर्फ होता है? Okay. All right. Is there Satan or is he an imagination? तो भाई का प्रश्न है कि शैतान है
या क्या वो एक सिर्फ कल्पना मात्र है? We believe the word of God, देखिए, हम परमेश्वर के वचन का विश्वास करते हैं, and the Bible has a lot to say about Satan. तो बाइबल के पास शैतान के बारे में बात करने के लिए बहुत है। In the next course that I'm going to teach, जो दूसरा अध्याय में जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, we will talk about believers' authority. तो हम बात करेंगे एक विश्वासी के अधिकार के बारे में। There is one full chapter about Satan. तो एक पूरा चैप्टर ही है, अध्याय है शैतान के बारे में। He's a real person. वह एक वास्तविक व्यक्ति है, He's not an imagination. वह कोई कल्पना नहीं है। Okay? अक्सर क्या होता है, हम हाँ। कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और कुछ चीज देख के डर गए, तो वो शैतान ही है या वो हमारी कल्पना है? अगर आप कुछ चीज को देखे हैं तो अरे मतलब अच्छा, अंधेरे में तो सबको डर लगेगा ही। suppose he's going somewhere and हाँ. he saw something and he got scared. So is that the imagination or is Did you Yeah, see Satan. did you see Satan? Is it like that? क्या आपने शैतान को देखा? ऐसा है क्या? तो वो- किसको देख के डर गया आप? वो कुछ चीज एनिमल भी हो वो- सकता है, एनिमल भी हो सकता है। वो अंधेरे में एनिमल को भी देखेंगे तो भी डर लगेगा। हाँ, तो वही तो अकेले कहीं जा रहे हैं। I'm trying to understand his question. His Can you question just is find out, brother? that it's about what you have seen that he's not able to Yeah. clear. आपने देखा क्या है वो बताइए। आप क्या अंधेरे है से ये, किसको आप देखा? अंधेरे से डर रहे हैं या किसी चीज को अंधेरे में देखें उससे डर रहे हैं कि किससे डर रहे हैं आप? उनका उनका क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या समझो, हम लोग एक रूम में अंधेरे में जाते हैं हाँ, तो क्यों डर लगता है? वो अंधेरे में क्यों डर लगता है? अंधेरे में। ये अच्छा, हाँ, वो तो इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर है। अब ब्रदर आंसर करेंगे। तो मैं यही बता सकता हूँ कि देखिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अब अगर आप जयवंत जीवन जी रहे हैं, आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है हमेशा, उस विश्वास में जीते हैं, तो आप अंधेरे में भी जाएंगे तो आप नहीं डरेंगे। वो मैं ही उत्तर दे सकता हूँ आपको अभी, बाकी हम बाद में बात करेंगे। Okay, good question, brother. Thank you. अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। What we'll do is we'll just go to the next chapter, तो हम लोग नए दूसरे अध्याय में जाएंगे, and if you have more questions during lunchtime, break time, we can answer. और अगर आपके पास और ज्यादा प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, हमारे लंच के समय में, हमारे ब्रेक के समय उसको हम आंसर करेंगे। So chapter 8 is about developing our personal prayer life. तो अध्याय 8 है वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन का उन्नति करने के लिए। So what is our personal prayer life made up of? तो हमारा जो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन है वो किससे बना हुआ है? It is made up of our personal time with God. तो वह हमारा व्यक्तिगत समय जो परमेश्वर के लिए हम लोग निकाला है। So that means when I'm praying alone by myself, that time of prayer. तो जब मैं अकेला एकदम अपने से खुद से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस समय को, Or and along with that, the time when I am praying with everyone, or corporate prayer. और ऐसी प्रार्थना जब मैं सबके साथ कर रहा हूँ या एक सबके साथ मिलके मैं समूह में प्रार्थना कर रहा हूँ। And in this chapter, we will talk more about personal prayer, or what we are praying by ourselves. और इस अध्याय में हम लोग कहेंगे और सीखेंगे उसके बारे में कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना कैसी होती है या फिर हम अपने से कब प्रार्थना करते हैं। When we want to live a victorious Christian life, जब हम एक विजयी मसीही जीवन बिताना चाहते हैं we need some disciplines, तो हमें किसी अनुशासन की आवश्यकता होती है, because without discipline, कि बिना अनुशासन के we cannot run long or run till the finish line. तो हम ज्यादा लंबा नहीं दौड़ सकते हैं और या फिर समाप्ति रेखा तक पहुंच नहीं पाते हैं। So as a young believer, I have to develop some disciplines. तो एक जवान विश्वासी के तौर पे हमारे अंदर कुछ अनुशासन को उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। Like reading the word and meditating in the word. वचन का पढ़ना, उसका मनन करना, And another important one is prayer. और दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वह है प्रार्थना। So how to keep prayer in my daily life?
तो कैसे अपने रोज के जीवन में हम प्रार्थना को रख सकते हैं। And as a soldier, और एक सैनिक के तौर पर you know, whenever we see soldiers, their lives are disciplined. हम देखते हैं सैनिक का जीवन, उनका जीवन बहुत अनुशासित होता है। So they train themselves to do certain things regularly. तो हम देखते हैं कि वह कुछ चीजों को ऐसा प्रशिक्षण करते हैं कि वो रोज करते हैं उसे। So we can say that they have the capacity to self-restrain. और वह अपने आप को, उसकी ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने आप को रोक सकते हैं किसी चीज के लिए। There is a scripture, 1 Corinthians 9 और एक verse 25. और एक वचन है पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 25वां वचन। Can someone read it for us? क्या कोई उसको हमारे लिए पढ़ सकते हैं क्या? हम सभी चीजों में संयमी है क्योंकि हम एक स्वर्गीय इनाम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। So the Bible is encouraging us to develop focus and discipline. तो बाइबल हमें प्रेरणा दे रही है कि हम उस बात को आगे और बढ़ाएं जहाँ पे हम अनुशासित बने। How can we develop self-discipline? और कैसे हम अपना जो स्वयं का अनुशासन उसको हम बढ़ा सकते हैं? With the power of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की शक्ति से, With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मदद से। And we can pray and say, God, help me develop a strong personal prayer life. तो हम कह सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे आप मदद कीजिए कि मैं अपना एक व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को उन्नति दे पाऊं। So we're going to talk about setting time for prayer. और हम उस समय को निर्धारित करने के बारे में हम उसके बारे में बात करेंगे। And making a routine for prayer. और हम अपना जो दिशा निर्देश है उसको बनाने के लिए हम प्रार्थना का उसके बारे में हम बात करेंगे। So let's now look at the prayer life of Daniel. तो आइए हम दानियल के प्रार्थना जीवन को देखेंगे। Someone could read Daniel 6 and verse 10. कोई पढ़ सकते हैं क्या? दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। So we know that in a difficult situation, Daniel went and he prayed in his upper room. तो हम देखते हैं कि दानियल कठिन परिस्थितियों में भी वो गया और अपनी ऊपरी कोठरी में प्रार्थना किया। The scripture says he knelt down 3 times every day and he prayed. और जो वचन बताते हैं कि वह 3 बार घुटने पे आया और प्रार्थना किया। But the words that we want to focus on are in the end of that verse. और जो वचन और जो आयत जिस पर हम अपना ध्यान लगाना चाहते हैं वो है अंतिम में। In English it says, as was his custom since early days. तो जो वचन कहता है कि जैसा वह उसकी रीति थी पहले से। What does that tell us about Daniel? तो वह दानियल के बारे में क्या बताता है? That he had a habit तो उसका एक अभ्यास था from early days. पहले के दिनों से। What was that habit? और पहले से वो अभ्यास क्या था उसका? Prayer. प्रार्थना। He did not pray only when the troubles came. वह जब कठिनाइयां आई तभी प्रार्थना नहीं किया। For him it was normal. उसके लिए यह सामान्य था। Every day he was praying. वो रोज प्रार्थना कर रहा था। That day also he prayed. उस दिन भी वो प्रार्थना की। So it was his custom from early days. तो वह उसका एक रीति था या उसका एक अभ्यास था उसके पुराने दिनों से। So Daniel had set up
time to pray alone with God from his young age. तो वो अपने युवा अवस्था से ही दानियल क्या करता था, वो समय परमेश्वर के साथ समय बिताता था। He had kept a time तो and used to pray. उसने एक समय निर्धारित किया था और उस समय वो प्रार्थना करता था। Now Daniel is in Babylon. अभी दानियल बाबुलोन में है। He is a chosen, he's chosen to be a great officer. और एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए उसका चुनाव किया गया है। Now, when somebody is at an officer level, at a high level, do you think their life is busy? तो कोई अगर बड़े स्तर पे या बड़ा अधिकारी होता है तो क्या आप सोचते हैं कि उनका जीवन व्यस्त होता है? Yeah, so busy, right? हाँ, बहुत बिजी होते, बहुत व्यस्त होते। But what does the scripture say? लेकिन यहाँ वचन क्या बता रही है? He still prayed. वह फिर भी प्रार्थना की That means he made time for prayer. कि उसने प्रार्थना के लिए समय निकाला। That is so great. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। It's difficult to get time, but he made time and he prayed just like his habit, practice. तो यह बहुत कठिन होता है समय निकालने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, अपने अभ्यासानुसार उसने समय निकाला और प्रार्थना किया। That is a big example for us. तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब के लिए। That Daniel had a set time of prayer regularly. तो दानियल का एक समय था, निर्धारित समय था जहाँ वह रोज लगातार प्रार्थना करता था। Even when he became a great man of influence, he kept his habit. और जब भी वह बहुत प्रभावशाली आदमी बन गया, तब भी उसने अपना यह अभ्यास को जारी रखा। Okay, so prayer life is the foundation on which our life as a believer stands on. तो जो प्रार्थना जीवन है वह एक नींव है जहां पर विश्वासी का जीवन खड़ा होता है। So if as a believer I don't have a prayer life, एक विश्वासी के रूप में अगर मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं रहे तो, if my prayer life is only praying with friends, praying on stage, अगर मेरा प्रार्थना का जीवन है कि सिर्फ हम स्टेज पे प्रार्थना करेंगे, अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करेंगे, church में, like in the church we are praying, कलीसिया में हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, foundation is very weak. तो इसका मतलब है तो कि हमारी जो नींव है वो बहुत कमजोर है। So training myself to have daily prayer time with God will give me strong foundation. तो जो मेरा समय है रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बिताने का, वह मुझे वह नींव प्रदान करेगा उस एक मजबूत विश्वासी बनने का। Some people say, why should I put time put aside time? I'll pray through the day as I go about. I'll talk to God and I'll pray. तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे समय क्यों निकालना है, जैसे दिन जाता है मैं ऐसे ही प्रार्थना करता रहूंगा और परमेश्वर से बातें करता रहूंगा, ये मेरी इच्छा है। Do you think it works? क्या सोचते हैं कि ये काम करेगा? We can talk to God little bit here and there, परमेश्वर से आप थोड़े इधर उधर बात कर सकते हैं, but it's very distracting, तो यह बहुत ध्यान भटकाने वाला होता है। and we cannot ensure that we pray properly in a given day. तो हम यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हम लोगों ने सही तरह से प्रार्थना किया उस दिन में। Some people may say that if Holy Spirit will lead me, then only I will sit for prayer. तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर पवित्र आत्मा मुझको अगुवाई करेगा तभी मैं बैठूंगा प्रार्थना के लिए। So how many times do we actually sit for prayer if we are waiting for the leading of the Holy Spirit like that? तो कितने बार हम तैयार होते हैं और इंतजार करते हैं कि हम अगर को पवित्र आत्मा से अगुवाई मिलेगी तो हम प्रार्थना करेंगे। Are we really able to pray if we do that? तो क्या हम सही मायने में प्रार्थना कर पाते हैं जब हम ऐसा करते हैं? Some people say, why to spend time in prayer? There is so much work to do. और कुछ लोग कहते हैं कि क्यों समय बिताएं प्रार्थना के लिए, काम तो बहुत बाकी है। Faith is action. जो विश्वास है वो हमारा काम है। Don't spend too much time in prayer. Let's do the work. ज्यादा समय आप प्रार्थना में मत बिताइए, काम को कीजिए।
Is that the right way of thinking? तो क्या वह सही विचार है सोचने का? And then there are people who say, I can't make time every day because I don't have time. तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं रोज तो समय नहीं निकाल पाता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। Is that true? क्या ये सही है? We all have time to scroll on mobile phone. हमारे पास समय रहता है कि हम मोबाइल फोन में स्क्रॉल करते हैं। But when it comes to prayer, जब प्रार्थना की बात आती है we say, I don't have time. तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। No, we all have time to sit and chit chat with friends, laugh with friends. हमारे पास समय होता है कि हम दोस्तों से बातचीत करके हम उनके साथ हंसते हैं। But when we ask about prayer, we say, actually, I don't have time. तो जब हम प्रार्थना के बारे में बात करते हैं तो उस समय कहते हैं अरे सच में मेरे पास समय नहीं है। See, the truth is, we all have time. देखिए सच्चाई ये है कि हम सबके पास समय है And we can all make time. और हम सब समय निकाल सकते हैं, How much ever busy we are. जितना भी बिजी हम क्यों ना हो। Some time in a day, we can assign for prayer. और समय के कुछ दिन के बाद हम प्रार्थना में को हम दे सकते हैं। Like Daniel, दानियल के जैसे he prayed daily. वह रोज प्रार्थना करते थे He went and prayed as was his custom from early days. और जैसे उसका रीति था वह रीति के अनुसार वो रोज प्रार्थना करता था। What about Jesus? यीशु के बारे में क्या? We already saw how much Jesus prayed. हम लोगों ने पहले से देख लिया है कि कितना ज्यादा यीशु प्रार्थना करते थे। No, early morning he went and prayed. भोर के समय वो जाते थे प्रार्थना करने के लिए। He spent extra time in prayer. वो परमेश्वर को प्रार्थना में और भी ज्यादा समय बिताते He थे। used to go to the mountain alone and spend many hours in prayer. वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पर अकेले जाते थे और प्रार्थना में बहुत समय So, बिताते थे। what can we learn from Daniel? What can we learn from the life of Jesus? तो हम दानियल और यीशु के जीवन से हम क्या सीख पाते हैं? There are some practical things, तो कुछ जो बातें हैं वो हम सीख पाते हैं and I'm going to share it with us. और मैं उसको आपके साथ साझा करने वाली हूँ। But it's not like 10 commandments तो ये 10 आज्ञा के जैसे नहीं है। that you have to pray only in the morning, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सुबह में भोर में ही प्रार्थना करना है and you have to pray only at 5 o'clock. और ऐसा नहीं कि आपको 5 बजे ही प्रार्थना करना है। So we're not going to put any rules. हम कोई आपको एक नियम नहीं बना रहे हैं, लागू कर रहे But हैं। looking at the lives of people like Daniel and Jesus, तो दानियल और यीशु के जीवन को देखते हुए some practical suggestions we can कुछ- share. जी कुछ जो सलाह है वो आपको हम दे सकते हैं। Based on that, उनके आधार पर we can develop our prayer life and prayer routine. और हम अपने जो प्रार्थना जीवन या प्रार्थना का जो दिशा निर्देश है उसकी हम उन्नति कर सकते हैं। So, are you ready for the practical suggestions? क्या आप तैयार हैं उस सलाह के लिए? Yes? Okay, how many of you are sleeping? कितने लोग सो रहे हैं? Okay, before the practical suggestions, you want to get up once and then sit down again? तो जो व्यावहारिक जो सुझाव है उससे पहले क्या आप खड़े हो चाहते हैं और बैठना चाहते हैं? खड़े Once, just get up and then sit down. एक बार खड़े हो जाइए और बैठ जाइए जल्दी से। I can watch who is actually not doing it. Okay, good. Nearly all of you stood up and sat down. हाँ तो सब लोग खड़े होकर बैठे, अच्छी बात है। Okay, I feel better that I'm not boring all of you. तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं आपको वैसे से बोर नहीं कर रहा हूँ। Okay, so now you're alert. Let's look at the suggestions. तो जैसा कि अब आप सचेत हो चुके हैं तो आइए अब उस सुझाव को देखेंगे। One helpful thing is to set a time and a place for prayer on normal days. तो सामान्य दिनों में एक बहुत मददगार चीज होती है कि आप एक समय निर्धारित करें और एक जगह निर्धारित करें। For example, उदाहरण के रूप में we may pick 5:30 a.m. as a time. तो हो सकता है कि हम चुनाव करें कि ठीक है 5:30 बजे सुबह
एक समय, every day रोज at this time इस समय I am going to pray. मैं प्रार्थना करने जाऊंगा। So we wake up हम उठते हैं, and we brush our teeth, we just wash our face, हम ब्रश करते हैं, अपने मुंह को धोते हैं, make yourself little bit alert, अपने आप को थोड़ा सा सजग करते हैं, and then also have a set place, और फिर अपना एक निर्धारित जगह होता है, वहां जाते हैं, sit there, वहां बैठते हैं, and then you pray. फिर आप प्रार्थना करते हैं। Now for some of us, we may say, I don't want to sit, I want to walk and pray. तो कोई हम में से कई कह सकते हैं, ठीक है, मैं तो बैठना नहीं चाहता, मैं टहल के प्रार्थना करना चाहता हूँ। It's okay. वो भी सही है। Get a set place एक निर्धारित जगह बना लीजिए, and a set time. एक निर्धारित समय बना लीजिए, And as long as you are comfortable, और जितना आप आराम महसूस करते हैं, that is fine. वो सही है आपके लिए। And make sure और ये सुनिश्चित कीजिए, every day रोज रोज do it at the same time, उसी समय, same place. उसी जगह पे। Because it's easy to concentrate if you do like that. तो ये बहुत आसान हो जाता है अपना ध्यान लगाने के लिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो। Okay? So on normal days, even I have a certain time and a certain place where I like to first sit and read the Bible little bit, and then I'll pray. तो मेरा भी ऐसा समय निर्धारित है कि ऐसे सामान्य दिनों में मेरा एक जगह है, और पहले मैं बाइबल पढ़ती हूँ और फिर मैं प्रार्थना करने लगती हूँ, एक निर्धारित समय पर और जगह पे। In the beginning, I used to try to sit on the bed and pray. तो शुरुआत में क्या करता था कि मैं अपने बिछौने पे बैठ के प्रार्थना करती थी। How many of you know success rate is very low? तो कितने लोग जानते हैं कि जो सफलता का जो दर है वो बहुत कम है इसमें। If you think, okay, I will just sit on the bed, I will try. Next thing you know, you're having dreams and visions. तो अगर आप बिछौने पे अगर आप प्रार्थना करने के सोचते हैं, तो आप दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि आपको स्वप्न और दर्शन आ रहा है, Because you fell asleep. क्योंकि आप सो गए। So it's better get out of your bed. तो ये अच्छा है कि अपने बिछौने से बाहर निकलिए। Maybe get some hot water, something. Wake yourself up, तो थोड़ा सा हो सकता है गर्म पानी, है ना, गुनगुना पानी लीजिए अपने Yeah. आप को जगाने के लिए। and then once you are little bit alert, sit and pray. और जब आप थोड़ा अपने आप को सचेत महसूस करते हैं, जगे हुए महसूस करते हैं, तो जाके बैठ के प्रार्थना कीजिए। See, on some days things may go little differently. तो कुछ दिनों में कभी होता है कि चीजें कुछ अलग तरीके से ही जाती हैं। Maybe family member is in hospital. हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में है, No, early morning you have to go and pick up someone from station, सुबह सुबह हो सकता है कभी किसी को आपको स्टेशन से पिकअप करना पड़ सकता or हो, you are traveling. या फिर आप यात्रा कर रहे हो। So that's okay. That's okay. ये कोई बात नहीं, ठीक है। More or less, try to stick to the same time, same place. तो जितना हो सके आप उस जगह पे और उस समय पे, निर्धारित जो सही समय है उस पे आप बनाए रहे अपने आप को। That will help us focus faster and get more out of our prayer time. तो वो आपको ध्यान आकर्षित करेगी, और आपका जो प्रार्थना का समय है उसमें ज्यादा आपको वो समय देगी। And you can try a format for prayer time. तो आपका जो प्रार्थना का जो समय होता है उसका एक दिशा निर्देशा बना सकते हैं। So if you're the kind you get distracted, then keep a notebook and you write down. If I'm going to pray for 30 minutes, 5 minutes I'll pray for this, 10 minutes rough, I'll pray for this, 10 minutes I will pray for this. Write a format. तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका ध्यान थोड़ा भटक जाता है, तो आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में आप 5 मिनट में इसके लिए प्रार्थना करूंगा, 10 मिनट में इसके लिए करूंगा, फिर 10 मिनट के लिए। तो इस प्रकार का आप एक प्रणाली, एक दिशा सूची बना लीजिए। Today we learned about the Lord's Prayer. आज हम लोगों ने सीखा प्रभु की प्रार्थना के बारे में। So you can try applying that. तो आप उसको भी लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। Or sometimes you may want to do slightly different. हो सकता है कभी आप थोड़ा अलग करना चाहते हो, So you're spending some time in praising God, thanking God. तो आप कुछ समय बिताते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। Then some time waiting on the Lord. तो कभी आप परमेश्वर का इंतजार करने के लिए आप That जी परमेश्वर के बारे को इंतजार करते हैं आप प्रार्थना में। and God speak to me.
आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें कीजिए, Then we start to pray for our spiritual needs. तब हम शुरू करते हैं हमारे आत्मिक जरूरत के लिए प्रार्थना करने के लिए। Then we pray for our family, फिर हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। for each person, for Like it- each person you can sit and pray, whatever, 2 minutes, 3 minutes per person. तो परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Yeah, and we can also pray for our church. और हम अपने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। Sometimes there are people, they come and say, brother, pray for me, I have this problem, that problem. So special request, pray for those requests. तो कुछ समय कोई भाई या बहन आपको कह सकता है कि भाई मेरे पास ये प्रार्थना का विषय है, तो आप उसके लिए भी आप प्रार्थना का समय निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। So you see, there are so many things to pray for. तो आप देखिए कि कितने सारी चीजें आ गई हैं प्रार्थना करने के लिए, We won't get distracted. तो फिर हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। Just write down what are the categories you're going to pray for तो आप उन श्रेणियों को लिख लीजिए कि किसके लिए आप प्रार्थना करने वाले हैं, and pray for that for some time. Then go to next point, pray for some time. Keep going on. You'll see that easily you can cover 30 minutes, 40 minutes. तो आप उस प्रणाली को अगर आप व्यवहार करते हो, देखेंगे कि आप कितने आसानी से उन सारे भागों के लिए जिसको आपने प्रार्थना के लिए निर्धारित किया था, उसके लिए आप प्रार्थना कर पा रहे हैं 30 मिनट 40 मिनट तक ऐसे। Okay? So these things will help us. तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगी। Time, समय, place, जगह and format. और जो आपका प्रणाली है। But format does not mean that we want to be rigid. तो अगर आप किसी प्रकार का जैसे प्रणाली बनाते हैं, अगर दिशा निर्देश बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको उसी में चिपके रहना है। Maybe one day Holy Spirit guides you to pray in tongues. Full 1 hour you're praying in tongues. तो हो सकता है कि एक दिन आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आप अन्य भाषा बात करें, पूरा 1 घंटा पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए। But the point is, you spend that time with God every day. तो जो बात यह है कि आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताइए। Okay, so if we learn to do this, we'll find that our life as a disciple will become stronger and stronger. और हम ऐसा करेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि एक चेले के रूप में आपका जो जीवन है वो और भी मजबूत होता चला जाएगा। And apart from this, a few other things that help us. और इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे लिए मददगार साबित होती है। We said pray without ceasing. हमने भी कहा कि निरंतर प्रार्थना करो। So that also means that we don't have to stop with that 1 hour of prayer. इसका मतलब ये नहीं कि हम उस 1 घंटे की प्रार्थना के बाद हम रुक जाएं। Any time through the day, you can keep talking to God. और उस दिन के दौरान कभी भी आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। And always maintain a prayerful attitude throughout the day. और हमेशा एक प्रार्थना का आचरण पूरे दिन के दौरान आप बना के रखिए। And sometimes, we feel the need to have 1 full day for prayer. और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, आज पूरा दिन प्रार्थना को सौंपना चाहिए। So, you can take 1 day of the week and decide that you're not going to go anywhere, you will be at home. Just pray, spend time in prayer that day. तो आप निर्णय लेते हैं कि ठीक है, दिन का आज के इस सप्ताह के इस दिन में मैं पूरे दिन प्रार्थना करूंगा, तो आप समय निकाल सकते हैं और उस समय निकाल के वो आप प्रार्थना कर सकते हैं। See, like for people like us, I think sometimes Saturday is the only day like you can actually cut off from everything. You can take some time by yourself. और देखिए, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए शनिवार का वो दिन होता है जहां पर आप सचमुच में वो समय निकाल सकते हैं और आगे दूसरे लोगों से थोड़ा अपना समय निकाल के प्रार्थना कर सकते हैं। Plan before that. Okay, on that day, I'm not going to do all these things. I will just pray. तो आप योजना बनाएं कि उस दिन मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, उस दिन मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। If there's any emergency things, you do it, but mostly you're putting all your time into prayer. अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो आप करें, नहीं तो पूरा समय आप प्रार्थना करें। And we can also pick some seasons for prayer. तो हम कुछ ऋतुओं को भी ले सकते हैं प्रार्थना के लिए। Like what I used to do is when you get your holidays, school holidays, college holidays. तो जब मैं क्या करती थी कि जब मेरा कॉलेज या स्कूल का छुट्टी होता था,
that time I used to decide, okay, 3 days, I'm just going to pray, fast, or 5 days I'm going to pray, or 2 weeks. Sometimes when we get a little lighter time, 2 weeks, I may be coming to work, but still those are my prayer days. तो हो सकता है कि 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 2 सप्ताह के लिए वो समय हो सकता है कि अगर मैं काम में भी आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो वो मेरा वो समय जिसमें मुझे थोड़ा समय मिलता है उस समय मैं उसको प्रार्थना के लिए बिता सकती हूँ। And you know, we can go back home and set a extra time in the evening again, take a couple of hours, read the Bible, pray. तो और भी हम थोड़ा थोड़ा बाकी समय निकाल सकते हैं, घर में भी जाके थोड़ा थोड़ा और समय निकाल के बाइबल पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। So if we keep doing this, how will it help us? तो अगर ये बातों को अगर हम करते रहेंगे तो ये हमको मदद कैसे करेगा? It will help us develop intimacy with God. तो यह मदद करेगा कि हमारा जो घनिष्ठता है वो परमेश्वर के साथ और भी बढ़ जाता है। We will be able to overcome temptations. जितनी परीक्षाएं हैं उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। It will help us understand God's will. हमको मदद करता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानने के लिए। It will help us strengthen and renew our inner man. और वह मजबूती प्रदान करता है और नया हमारे जो आंतरिक मनुष्य है उसको उसका नवीनीकरण कर देता है। And help us become more sensitive to the Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा के लिए हम और संवेदनशील हो जाते हैं। And it's like we are opening up our life for more of God's work, more of the work of the Holy Spirit. ऐसा जान पड़ता है कि अपना जीवन को हम और ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए और पवित्र आत्मा के कामों के लिए खोल दे रहे हैं। See, normal everyday prayer, देखिए जो सामान्य रोज की जो प्रार्थना होती है we may not have too much time हमारे पास ज्यादा समय नहीं हो सकता, because we have to get ready. We have so many things to take care of. कि हमको तैयार होना पड़ता है, बहुत सारे अन्य बातों का देख रेख करना पड़ता है हमें। When we set time aside like prayer days or prayer seasons, और जब हम अपना समय निर्धारित करते हैं जैसे प्रार्थना को दिनों के लिए या प्रार्थना के उस समयों के लिए, विशेष समयों के लिए, we can spend time and ask God to do the cleansing work in us, and so much of deep work God can do in our lives. तो हम समय बिता सकते हैं और मांग सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे अंदर जो सफाई का काम है, जो शुद्ध करने का काम है वो कीजिए। और भी ज्यादा बातें हम परमेश्वर से उस समय मांग सकते हैं और ज्यादा काम होता है उस समय। And also, you see, God can speak to us in our prayer times. और देखिए परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं हमारे प्रार्थना के दिनों में। And you get ideas. तो आपको बहुत सारे नए बुद्धि आती है। So when we were preparing for STBC, तो जब हम लोग STBC का जब हम तैयारी कर रहे थे we did so much of planning. तो हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं को बनाया। And every time as a team, whenever we used to come together, we'll find some difficulty. तो जब भी एक दल के रूप में जब हम आते थे तो हर एक समय हमको कुछ कठिनाई प्राप्त होती थी। Like, okay, we are not getting the hostel here. The hostel is too far. So many things. तो हम देखते थे कि अरे हमको तो हॉस्टल यहाँ नहीं मिल रहा है, हॉस्टल बहुत दूर है, तो बहुत सारी बातें ऐसे आती थी। So we used to pray about these matters. तो हम इन बातों को लेकर प्रार्थना किया करते थे। And we found that God was giving us new ideas. तो हम लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर हमको नई बुद्धियां दे रहे थे। For example, this hall, देखिए जैसे कि यह जो हॉल है, usually we stand over there and the students sit. I don't know if you can imagine it. Teacher will teach from there and the students will be arranged like this. तो जो इस बड़े कमरे का देखिए एग्जांपल, जैसे टीचर वहां से पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट है वो ऐसे उस तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। And then we were thinking, how are we going to put so many people in this hall? तो हम सोच रहे थे कि अरे कैसे हम इतने लोगों को इस बड़े कमरे में रखेंगे। And every time like we were praying, we were saying, God, help us, give us some ideas. तो हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम मदद कीजिए, कुछ आइडिया हमें दीजिए, कुछ बुद्धि दीजिए। Suddenly we got this idea, hey, why can't the stage be here? तो हम लोगों ने अचानक से ये आइडिया आया कि अरे स्टेज यहाँ कैसे क्यों नहीं हो सकता? Then we can see everybody can see us. तो सब लोग हमको देख पाएंगे और हम सबको देख पाएंगे। But it was not easy to shift everything from there to here. तो बहुत आसान नहीं था कि वहां से सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट करना। God gave the idea. लेकिन परमेश्वर ने वो तरीका दिया। Like that little one by one different ideas God
starts to speak to us. और इसी तो प्रकार एक करके परमेश्वर ने उस सारे बुद्धि को बातों को हमको बताता गया। And when we start doing those things, we'll see, okay, we are making progress. तो जब उन सारों को कामों को अगर हम करते चले जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे ठीक है, अब हम उन्नति कर रहे हैं। So in prayer time, also listen to God. तो प्रार्थना के समय में आप परमेश्वर को सुने भी। Now what we do is we come to God. हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के साथ पास सामने आते हैं। God, I need this. God, I need that. God, close, finished. Okay, bye God. Amen. See you tomorrow. तो क्या करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, फिर बंद करके ओके परमेश्वर बाय बाय। God is like, I want to tell you something, and we run away. और परमेश्वर कहता है मैं तो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन तुम भाग गए। Do you have in your neighborhood some children who are playing? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं? They'll come ring the bell. वो आपको घंटी बजाएंगे आपके दरवाजे का। You'll open the door, nobody will be there. जब खोलेंगे तो कोई नहीं रहता वहाँ पे। Because they rang the bell, they ran away. उन्होंने घंटी बजा के भाग गए वो। And you're like, why are they ringing the bell when they don't want to meet us? आप सोचते कि अरे क्यों वो घंटी बजा रहे हैं जब वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते। It's like that when we approach God तो इस sometimes. प्रकार ही है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं कभी-कभी We make an appointment with God. हम परमेश्वर के साथ अपना समय बनाते हैं, We speak to Him. हम उनसे बात करते हैं। When it is His turn, जब उनकी समय आता है बात we run करने away. का, हम भाग जाते हैं। Don't do that. उसको मत कीजिए। Let's speak to God and let God speak to us. चलिए हम परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर को हमसे बात करने दें। God will guide us. परमेश्वर हमका मार्गदर्शन करेगा। God will show us. परमेश्वर हमको दिखाएंगे। He will give us new thoughts, new ideas, वो हमको नए विचार, नई बुद्धि देंगे, new options. हमको नए तरीके देंगे। And you will see, hey, I'm actually moving forward आप देखिए कि अरे हाँ, अरे वास्तविकता में तो मैं तो अब आगे बढ़ रहा हूँ because of my prayer life. मेरे प्रार्थना जीवन के कारण। I am stronger, I am bolder. God is helping me. मैं काफी मजबूत हो गया हूँ, मैं काफी हिवाए बांध रहा हूँ, परमेश्वर मुझे मदद कर रहे हैं। So this is what all of us need as believers. और यही एक विश्वासी के रूप में हम सबको ये जरूरत है। Okay, so this is some of the key things about prayer life. तो ये कुछ विशेष चाबियां हैं प्रार्थना के जीवन के बारे में। Any questions about it? इसके बारे को लेकर कोई प्रश्न है? हाँ. हम्म. हम्म. Okay. Okay, so yeah, sure. He's just sharing his thought that God does not leave us, even though we approach Him and we may go away from Him. He does not forsake us. तो भाई अपने विचार साझा कर रहे थे कि अगर परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं तो वो हमें नहीं छोड़ते। और कोई प्रश्न? Yes, sister. Yeah. हाँ. Yes. Okay, so she's asking about tithing. तो बहन जो है वो दशमांश के बारे में वो इसके क्षेत्र में बात कर रही है। Yeah, it is said that you can give 1/10 of your time to God. ये भी कहा गया है कि अपना समय का 10वां हिस्सा भी आप परमेश्वर को दीजिए। See, we don't see any scripture that says give 1/10 of your time to God. देखिए कोई ऐसी आयत तो नहीं है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि आप अपना 10वां हिस्सा समय का परमेश्वर को दीजिए। But I feel it's a good thing. लेकिन मुझे अनुभव होता है कि ये अच्छी बात है। Yeah, so every day if we are going to take 1/10 of our waking time and pray, read the Bible, it will benefit us only. There's no loss in that. तो जैसे कि अगर हम रोज अगर अपना समय का 10वां हिस्सा निकाल के बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर की महिमा करने में, आराधना करने में लगाते हैं तो इसमें कोई घटी कमी की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। Yeah, good. For when it comes to giving food,
See, we generally look at it as 10% of our income. देखिए सामान्य रूप से हम देखते हैं हमारा जो 10वां हिस्सा जो हमारे आय का होता है, So whatever 10% comes, 1/10 of it we give to God. That jit- is what we call as tithes. तो जितना दसवांश मतलब इसका मतलब होता है कि जो हम आय करते हैं ना उसका 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं। Now, in all other aspects of our lives, if you want to give 1/10, it's your personal choice, and I feel like it's a good thing if you can do that. तो अपने अपने जो आपके रोजाना के जीवन में अगर आप हर एक बार एक 10वां हिस्सा हर एक क्षेत्र का अगर आप परमेश्वर को देना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगी कि यह अनुभव जो है मैं ये सही है, आप उसे कर सकते हैं। Okay, so brother, brother has a question about tithe. जी, भाई का एक दसवांश के बारे में एक प्रश्न है। See, we are supposed to give to the church that is equipping us, nurturing us. तो हमको यह करना है कि वह हमको उनको देना है उस कलीसिया को जो हमें बना रहा है, जो हमें बढ़ा रहा है। Usually, it's our local church. तो हमारा वो स्थानीय कलीसिया है। So we give the tithe to our local church. तो जो हमारा दसवांश है, हमारा जो कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया, उसको जाना चाहिए। Now about informing the pastor and all, I would suggest you wait for Pastor Jaykumar. He'll do a session on financial stewardship. So you तो can all ask all your money questions तो to Pastor अगर Jaykumar. अगर दसवांश आप दे रहे हैं तो पास्टर को बताना है कि नहीं बताना है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप पास्टर जय कुमार के सत्र का इंतजार करें। वह उसमें आपको जो आपके आर्थिक किस प्रकार उसको चलाना है उसके बारे में एक पूरा अध्याय है, उसमें आप उस सारे प्रश्नों को पूछें। Okay, so what we learned is set aside a time for prayer. तो क्या हम लोगों ने सीखा कि प्रार्थना के लिए समय निकालना है। So are we all going to think about it? तो क्या अब हम इसके बारे में सोचेंगे? Will we try to make time? तो क्या हम समय निकालने की कोशिश करेंगे? Okay, so in the beginning it will not be easy. देखिए शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। If you know a little child whom the parents are teaching to brush, तो आप जानते हैं अगर कोई ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा जिसके माता पिता सिखा रहे हैं उसको ब्रश करने के लिए, the kids will cry. तो वो रोएगा, They say, no, I don't want to brush my teeth. वो कहेगा नहीं नहीं मुझे ब्रश नहीं करना है, I don't like it. I don't like the taste. मैं उसका टेस्ट पसंद नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। So parents are struggling, right? 1 year, 2 years to teach them to brush. और माता पिता बहुत संघर्ष करते हैं, 1 साल 2 साल उसको ब्रश करने के लिए सिखाने के लिए, And they learn how to, brush their teeth. और फिर वो सीख जाते हैं कैसे ब्रश करना है। And we are all adults now. अब हम सब बड़े हो गए हैं, We don't even think, right? हम तो सोचते भी नहीं है, है We ना? just get up, we brush, we just do our daily routine. तो जब बड़े हैं तो हम उठते हैं, अपना जो रोज का दिनचर्या है उसको करते हैं। So developing a habit, जो अभ्यास को उन्नति करना है, something like brushing your teeth, जो ब्रश करने के बारे में है, it's not easy. It takes so much time, practice, effort. तो यह बहुत समय लगता है, बहुत सारा समय, बहुत सारा प्रयास, बहुत सारा आपको करना पड़ता है। But little by little, it becomes a part of your life. तो थोड़ा थोड़ा करके वो आपके जीवन का भाग बन जाता है। In the same way, उसी प्रकार we are trying to set aside time for prayer. तो हम एक समय निकाल रहे हैं प्रार्थना के लिए। It may take a few weeks, few months, even few years. हो सकता है कि कुछ समय लगेगा, कुछ सप्ताह लगेगा, या फिर कुछ साल लग जाए। But the important thing is try every day. तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रोज कोशिश कीजिए। Okay, keep trying till it becomes a habit. तो रोज कोशिश कीजिए जब तक कि वो आपका अभ्यास या आदत न बन जाए। And if you have a strong prayer life, तो अगर मजबूत प्रार्थना का जीवन होगा, then we can be a victorious believer. तब जाके आप एक विजयी विश्वासी बन पाएंगे। Amen. आमीन। So I really hope and pray that you will apply this in your lives. तो मैं सचमुच आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे। So we're going to pray now and close. अब हम प्रार्थना करेंगे और उसको
समाप्त करेंगे आज के लिए। And I request one of us students to please go ahead and pray. हमारे and से we'll एक wrap जो up. छात्र हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप प्रार्थना करें और हम उसके बाद स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके पास और आपके करीब आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर, जो आज के वचनों से प्रभु सिखाया प्रभु जी। प्रेयर के ऊपर हम प्रेयर के लिए समय निकाले प्रभु जी, अपने कीमती समय को जो हमारा प्रभु जी ध्यान नहीं लगता है प्रार्थना में प्रभु जी, या हम प्रार्थना क्यों नहीं जा पाते, लेकिन परमेश्वर हम अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपका आत्मा हमारी अगुवाई करेगा प्रभु जी, हमारी मदद करेगा कि हम उस प्रार्थना में जाकर हम एक बलवंत बन सके, एक विजयी जीवन जी सके प्रभु जी। खुदा परमेश्वर, ये आज का वचन जो प्रचार किया गया, इन वचनों के द्वारा हम सीख कर अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी, और हम प्रतिदिन कोशिश करें कि प्रभु जी हम प्रार्थना में एक प्रार्थना में जीवन जी सके प्रभु जी। Yes. खुदा परमेश्वर, जैसे याशायाह के प्रभु जी, दानियल के जीवन से हमने सीखा प्रभु जी कि वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था और समय से प्रभु जी। खुदा वैसे हमारी भी प्रार्थना होने पाए प्रभु जी, हमारी भी मदद करें और सहायता करें आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी। हम सबको ब्लेस करें प्रभु, आशीष करें, और टीचर को प्रभु, सर को प्रभु आशीष और ब्लेस करें। यहाँ के हर एक लोगों को प्रभु, जितने लोग भाई और बहन प्रभु जी वचनों को सुने प्रभु, इन सभी को ब्लेस करें, और इन वचनों को द्वारा प्रतिदिन हर समय हर पल प्रभु बात करे प्रभु जी, ताकि ये प्रार्थना में मजबूत जीवन जी सके प्रभु जी। पवित्र वचन कहता है, तू प्रार्थना नहीं करेगा तेरे अंदर ताकत और सामर्थ नहीं आ सकती। खुदावन वही सामर्थ, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें सामर्थ आता है प्रभु जी। खुदावन आशीष करे और ब्लेस करे प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर, हम भोजन में जाने से पहले प्रभु जी हम आपसे कहते हैं प्रभु जी, हमें आप सामर्थ और शक्ति दीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना में बलवंत बन पाए प्रभु जी, और आशीष करे प्रभु, ब्लेस करे प्रभु। और खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आपको आदर और महिमा देते हैं, और भोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक आशीष करे, ब्लेस करे, खाने से उन्हें बल और ताकत सामर्थ है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम आशीष को मांगते हैं, और ये सारी प्रार्थना और विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। Amen. Thank you. Okay. Thank you everyone. Have a good lunch. सबका धन्यवाद। अच्छे से भोजन कीजिए।